हेलो बच्चों, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, नो टर्मिनोलॉजी है अकाउंटेंसी की, वो है एंट्री. व्हाट इज एंट्री? एंट्री मीन्स टू एंटर. एंटर मीन्स प्रवेश, मीन्स record. To enter the transactions in the books of accounts means all recording of all types of business transactions. All types of business transactions means sales, means credit transactions, cash transactions, expenses, income, purchase, sales, etc. All these type of transactions are recorded in the proper way, proper form या proper method in the books of accounts. Recording of all types of business transaction in the proper way, proper form, proper method in various types of books of accounts. Various types of books of accounts means, that is, in journal book, in ledger book, in subsidiary book, in cash book, etc. That recording process is called as entry. It is recorded in the form of debit and credit. This account is debit and this account is credit. While recording it in the form of debit and credit, accounting rules must be followed. Types of accounts and their rules are followed from recording the transaction in the books of accounts. Means accordingly the transaction must be recorded by using the given accounting rules. Three types of accounts are there and their rules are also, and their rules are followed while recording the transaction in the books of accounts, and that process is called entry. That record is called entry. Next, narration. What is narration? A brief explanation. Narration means an explanation. What explanation? Explanation of transaction. Yeah, explanation of entry. Explanation of entry, for which on entry is passed, is called as narration. For example, this is journal entry. मान लो कि देखो यहाँ पर एंट्री है सुजीत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. This is called entry. Entry means record the transaction in debit form and credit form. This is called entry, and the explanation is this. Explanation is written below this journal entry and in the bracket also, and this is starting with the word being and being goods sold on credit. So this is called narration. Narration means explanation of the journal entry below the journal entry and in bracket form and starting with the word being. So narration. It is usually started the word being. Narration should be as short as possible. जितना हो सके वो short होना चाहिए. As short as possible. It should be easy to understand. Their words always should be easy to understand other persons. Narration should be as short as possible. जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट नरेशन होना चाहिए एंड वो समझने के लिए इजी होना चाहिए. एंट्री के नीचे लिखना है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, स्टार्टिंग बीइंग शब्द से करना है एंड ये एकदम शॉर्ट में लिखना है. तो इस प्रकार इसको कहते हैं नरेशन. देन द सेकंड इज गुड्स.
Goods means what? Any commodity. Commodity means vastu. Commodity means vastu. Any article. Article means also vastu. Anything. Things means also वस्तु. Which is produced. जो produced की गई है, manufactured की गई है और purchase की गई है. Mercantile. Any commodity, any article, anything which is produced या which is purchased for mercantile. For mercantile means for purchasing and selling. Buy for sell by trader called goods. Any commodity, कोई भी वस्तु which is produced, जो प्रोड्यूस्ड की गई है या परचेस्ड की गई है. मर्केंटाइज फॉर सेल, किस लिए मर्केंटाइज किया गया है? उसको सेल के लिए किया है. बाय ट्रेडर, ट्रेडर जब जो वस्तु प्रोड्यूस्ड करता है, परचेस करता है, किस लिए? फॉर सेल, टू मेक प्रॉफिट, एंड दैट इज कॉल्ड गुड्स. गुड्स आर परचेस्ड, वो परचेस्ड किया हुआ है, और मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन किया है. फॉर द पर्पज ऑफ सेल, किस लिए? सेल के लिए. एंड टू अर्न प्रॉफिट, टू गेट प्रॉफिट. व्हाट इज गुड्स? What is goods? The goods are purchased, goods are manufactured for the purpose of sell, for the purpose of sell, and for the purpose of getting profit, earn profit. That is only called goods. Goods in which a trader trades, trader deals. ट्रेडर जिसमें ट्रेड करता है, व्यापार करता है. ट्रेडर जिसका डीलिंग करता है. डीलिंग मीन्स परचेसिंग एंड सेलिंग. डीलिंग एंड ट्रेडिंग मीन्स, डील एंड ट्रेड मीन्स क्या होता है? परचेस किया है, एंड परचेस किस लिए किया है? सेल करने के लिए. परचेसिंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड ट्रेड, इज कॉल्ड डील्स. सो गुड्स इन विच ए ट्रेडर ट्रेड्स, ऐसे गुड्स कि जिसमें ट्रेडर ट्रेड करता है, व्यापार करता है, परचेस करता है, सेल करता है, उस वस्तु को क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मेडिसिन के लिए, मेडिसिन जो है वो गुड्स होगा फॉर द केमिस्ट. जो केमिस्ट की दुकान चलाता है उसके लिए मेडिसिन हो गया गुड्स. वेजिटेबल्स, वेजिटेबल वेंडर जो है, भाजी विक्रेता जो है, सब्जी विक्रेता, उसके लिए वेजिटेबल हो गए गुड्स. क्लॉथ, कपड़ा, क्लॉथ का शॉपकीपर जो होगा उसके लिए क्लॉथ हो गया गुड्स. फर्नीचर, फर्नीचर का सेलर जो है, सप्लायर जो है, फर्नीचर का व्यापारी जो है, उसके लिए फर्नीचर हो गया गुड्स. पार्ट्स जैसे मैन्युफैक्चरर लाइक बजाज ऑटो, हीरो मोटर्स वगैरह, उनके लिए उनके जो पार्ट्स हैं जो बनाते हैं, टायर बनाते हैं, इंजन बनाते हैं, गियर बॉक्स बनाते हैं, केबल्स बनाते हैं, ये सब उनके लिए क्या है? गुड्स है, क्योंकि उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं. स्टेशनरी मर्चेंट के लिए गुड्स क्या है? स्टेशनरी है. स्टेशनरी क्या है? गुड्स है. प्रॉपर्टी डीलर, जो प्रॉपर्टी का डीलिंग करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते हैं एंड बेचते हैं, उनके लिए जो लैंड है, ज़मीन है, शॉप जो वो खरीदते बेचते हैं, फ्लैट खरीदते हैं और बेचते हैं, प्लॉट्स खरीदते हैं और बेचते हैं, तो ये लैंड, ये शॉप, ये फ्लैट, ये प्लॉट, ये उनके लिए क्या है? गुड्स है. क्योंकि ये प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं वो इन्हें खरीदते हैं बेचने के लिए, इसलिए उनके लिए ये चीज़ क्या हो जाती है? गुड्स हो जाती है. इस प्रकार गुड्स मीन्स परचेस्ड एंड मैन्युफैक्चर. गुड्स आर परचेस्ड, गुड्स आर मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पज ऑफ सेल एंड टू अर्न द प्रॉफिट, गेट द प्रॉफिट. नेक्स्ट अभी हम देखेंगे प्रॉफिट. व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट मीन्स गेन, गेन यानी लाभ, विच इज अर्नड बाय द बिजनेस मैन बाय अंडरटेकिंग वेंचर्स. वेंचर्स मीन्स रिस्क, वेंचर और रिस्क,
by running the business. While running the business, every promoters, every businessman undertaking the ventures, various types of ventures, various types of risk, and that's way he get profit, he get earn, he get gain from that. The profit means what? ये हमने बचपन से देखा है. प्रॉफिट इज वॉट? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. रेवेन्यू मीन्स उत्पन्न, उसमें से खर्च माइनस होता है तो जो बचता है वो है प्रॉफिट. उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रॉफिट कहते हैं. सपोज सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इट इज ए प्रॉफिट. प्रॉफिट मीन्स वॉट? सेलिंग प्राइस, हमने कितने में बेचा? 120 माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब जिसमें हमने खरीदा था. परचेस प्राइस जिसको अपन बोलते हैं, तो परचेस किया था हमने 100 में, तो 100 100 दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट गुड्स, एंड हमने सेल किया, सेलिंग प्राइस ऑफ दैट इज 120, सो द डिफरेंस इज 20 एंड दिस इज अवर प्रॉफिट. प्रॉफिट increases the capital of the business. Profit is it increases the capital of the business. उसके बाद लॉस. लॉस मीन्स वॉट? उल्टा है. लॉस मीन्स एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम. एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम. जैसे यहाँ देखो, लॉस इज वॉट? एक्सपेंसेस आर, देखो एक्सपेंसेस 60,000 माइनस रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स इनकम 50,000. एक्सपेंसेस हो गया 60, रेवेन्यू मिला उत्पन्न 50, यानी 10,000 कम मिला, तो दिस इज लॉस. ये क्या है? लॉस है. व्हेन वेरियस टाइप्स of expenses of the business are more than income. Expenses are more than the income received to the business due to several factors. Losses incur from several factors. This, for example, why the loss is there? The misuse of resources. हमने resources का ढंग से यूज़ नहीं किया. रिसोर्सेस मीन्स उत्पादन साधन. उत्पादन के जो साधन है उसका हमने ढंग से यूज़ नहीं किया, तो मिसयूज ऑफ रिसोर्सेस, फ्रॉम दैट लॉसेस विल बी इनकर्ड. एबनॉर्मल वेस्टेज. वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है, वेस्टेज ज़्यादा हो गया. निग्लेंस ऑफ प्रोप्राइटर ने यदि निग्लिजेंस किया, मतलब दुर्लक्ष्य किया, उसने अपने बिजनेस की तरफ उसका ठीक से ध्यान नहीं है. ड्यू टू इनप्रॉपर प्लानिंग ढंग से नहीं किया, मतलब प्लानिंग ठीक से नहीं है, ठीक से बिजनेस पे ध्यान नहीं है, वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है. जो तुम्हारे रिसोर्सेस से उत्पादन साधन है उसका ढंग से यूज़ नहीं हो रहा है, गलत यूज़ हो रहा है. तो फ्रॉम दैट वेरियस कॉजेस द लॉस विल बी इनकर्ड. सो लॉस मीन्स एक्सपेंसेस आर मोर than revenues, so loss will be there. Loss is incurred.